اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے مخاطب ہونے کو آیا ہوں وہ ٹاپک ہے پاکستان میں آئے حالیہ دنوں میں سیلاب۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دنوں جو سیلاب آیا اس کی تباہ کاریاں شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تقریباً پاکستان کے ہر صوبے کو ہی اس نے اپنا ایفیکٹ کیا ہے، کہ جس میں بعض تو مقامات، بعض پورا کا پورا دیہات، پورے کا پورا شہر، جس کے بارے میں ہم یہ کہیں غلط نہ ہوگا کہ یہاں پہ کبھی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہت سی اس سیلاب کے بہت سی انسانی جانیں، بہت سا انسانی مال اور مکانات، ہر چیز یعنی وہ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ کی طرح بس بجائے اس کا کوئی حل نکالنے کے یہی سوچتے رہے کہ یہ سیلاب گزر گیا، امداد کریں اور اب نیکسٹ سال آنے والے سیلاب کا انتظار کریں۔ اس کے علاوہ نہ ہم نے آج تک اس کا کبھی کوئی سلوشن نکالا ہے اور نہ ہی اس پر ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی بات کی ہے۔ اور میں اپنے ارباب اختیار سے بھی کہوں گا کہ خدارہ یہ پارٹی بازیوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کچھ ایسے ایجنڈے آپ لوگ چن لیں کہ جس پر آپ سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، تمام پارٹیوں کے اختلافات آپس میں سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اپنے ذاتی اختلافات سائڈ پہ رکھتے ہوئے، کوئی آپ کے کچھ ایسے ایجنڈے ہو کہ جہاں پہ آپ ایک قوم ہو کے سوچیں اور ایک اس طرح ایک یونٹی بنا کے آپ سوچیں کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں۔ پاکستان میں اب ڈیم بنانے ضروری ہیں، پاکستان میں ڈیم ہونے چاہیے کہ جتنا سیلاب کا پانی آئے اس میں ہم سٹور کریں۔ اگر یہی پانی ہم اپنے پاس سٹورج کر کے رکھیں تو کیا یہ پانی ہمیں سارے سال کے لیے کافی نہ ہے؟ اسی پانی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں۔ اسی پانی سے جب ہم ڈیم بنائیں گے تو ہمارے جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا، یہیں سے ہم بجلی بھی بنائیں گے۔ ہر صوبے میں جب یہ ڈیم بنیں گے تو ہر صوبے کے ہر ضلع کو اپنے ہی ڈیم سے ہم بجلی مہیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ الٹا ان ڈیموں پہ ہم سیاحی مقامات بنا کے اپنے ملک کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں۔ ایک ڈیم بنانے سے ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں اور پاکستان کو سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں۔ کیا ہمیں ابھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کا بہترین مستقبل اور بہتر حال پاکستان میں ڈیموں کا جال؟ ناظرین، ایک کالا باغ ڈیم جس پر ہم متفق نہیں ہو سکے، ہمیں اب اس پہ متفق ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آئیے خدارہ اپنی تمام تر پارٹی سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں، اپنی تمام تر ذاتی اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں۔ خدارہ کچھ لچک ایک دکھائے، کچھ لچک دوسرا، اور بیٹھیں اور پاکستان کا سوچیں۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ لڑائیاں جھگڑے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کا مستقبل چاہیے، اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے۔ پاکستان میں ڈیموں کی کیوں جال بچھانا چاہیے، کیوں ڈیموں کا ہونا ضروری ہے، اس پر ہمارے ایک دوست ڈاکٹر اے ایم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ڈیم کیوں ضروری ہے، جس پر میں نے آپ سے گفت و شنید کی۔ تو آئیے ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھائی دیتا ہوں کہ جس میں ڈاکٹر اے ایم بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیم کیوں ضروری ہے۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ اس وقت میں دریائے سندھ کالا باغ کے مقام پر موجود ہوں اور جس تاریخی پل کے اوپر موجود ہوں، کم از کم اس پل کی عمر 94 سال ہے۔ میں جس پل پہ کھڑا ہوں اس کو انگریزوں نے 1928 میں بنایا اور جاتے جاتے بہت ساری اچھی چیزیں بنا گئے، لیکن میرا انگریزوں سے ایک گلہ ہے، یار کم از کم جاتے جاتے ایک کالا باغ ڈیم تو بنا لیتے۔ اتنا بڑا ہمارا ہر سال نقصان ہوتا ہے
पूरे मुल्क का नुकसान होता है, इतना नुकसान तो ना होता। कम से कम एक डैम बनाते। यार आप इतनी जबरदस्त चीज बनाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी इस पुल को देखते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे 6 साल पहले बना है। बस एक ही गिला है, अगर आप डैम बना जाते तो इतना बड़ा माल मवेशियों का नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, मुआशी नुकसान हम बच जाते। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है। ये है कालाबाग डैम। ये आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बीच में कालाबाग डैम में बनना है। सिर्फ आगे से कंस्ट्रक्शन होनी है, कुदरती डैम बनाया है। कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर डैमों, आबी ज़खायर और मुल्की बका के दुश्मन आज़ादाना और पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। या यूं कह लें कि खाते भी पाकिस्तान का हैं और मुखालिफत भी इसी की करते हैं। वतन अजीज को मार्ज़े वजूद में आए हुए 75 साल गुजर गए। इस मिट्टी पर सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, आमरीत, सिविल आमरीत, बहुत से तर्ज़े हुकूमत के तजुर्बात किए गए, लेकिन आज तक कौम को कालाबाग डैम नसीब ना हो सका। सियासतदानों और मफाद परस्तों ने कालाबाग डैम को यूं उलझाया कि उसे अवाम के सामने एक मुअम्मा और नाकाबिल हल मसला बनाकर खड़ा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कालाबाग डैम प्रोजेक्ट को तफसील के साथ पेश करें। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने बाकी मांदा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के साथ साथ कालाबाग डैम की तामीर भी कामयाब हो जाती है इसमें, तो यकीन कर लें कि ये अपने फंक्शनल होने के ठीक 2 साल बाद अपनी लागत वापस कर चुका होगा। ये डैम बिजली की सस्ती पैदावार के साथ साथ तकरीबन पाकिस्तान की 10 से 15 लाख एकड़ जमीन को आबाद करने की सलाहियत रखता है। ये डैम मुख्तलिफ जराए से इकट्ठे किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक ये डैम तकरीबन 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की अहलियत रखता है। याद रहे कि सख्त गर्मी के मौसम में भी पाकिस्तान की जरूरत 30,000 मेगावाट है। बाकी मादा बिजली से मुल्क की बंद इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। रूस और चीन को नई इंडस्ट्री लगाने की दावत दी जा सकती है। मैं कालाबाग डैम की लोकेशन को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। कालाबाग डैम जिला मियांवाली के साथ एक पसमानदा इलाका है। खुशकिस्मती से कालाबाग को इसलिए इतनी अहमियत हासिल है क्योंकि अफगानिस्तान से दरियाए काबुल, सवात से दरियाए सवात और दरियाए सवा इस जगह से होकर दरियाए इंडस में गिरते हुए जैसे बारिशों का मौसम शुरू होता है, बड़े बड़े सैलाबी रेले इन्हीं दरियाओं के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। सारे पाकिस्तान में अपनी तबाहकारियां फैलाते हुए बगैर किसी रुकावट के दरिया सिंध से होते हुए समुंदर बुर्द हो जाते हैं। अगर इसी जगह पर कालाबाग डैम की तामीर हो जाती है, इसी जगह पर, तो हम इन दरियाओं और बरसाती नदी नालों से आने वाले पानी को स्टोर कर सकेंगे। कालाबाग डैम में पानी की गुंजाइश 90 मिलियन एकड़ फुट से भी ज्यादा है। अगर ये डैम तामीर हो जाता है तो हम इसके पानी को राब्ता नहरों की मदद से दरियाए जहलम में छोड़ सकते हैं, जहां से तरबेला डैम का पानी वाटर रिजर्व में चला जाएगा। और अगर नहरों को पानी की सप्लाई कालाबाग से दे दी जाए तो तरबेला डैम को भरना आसान हो जाएगा। अभी चूंकि हम अपनी ज़राअत के लिए तरबेला डैम से ही पानी ले रहे हैं, इसी वजह से तरबेला भरने से पहले ही खाली हो जाता है मेरे दोस्तों। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि दरियाए सवात, सवा, काबुल से कालाबाग और दरियाए इंडस से तरबेला भरा जा सकता है। कालाबाग डैम को जब डिजाइन किया गया था तो उसके साथ कालाबाग रसूल लिंक भी शामिल थी। कालाबाग रसूल लिंक के जरिए कालाबाग डैम से पानी की सप्लाई दरियाए जहलम को दी जानी थी, लेकिन बदकिस्मती और गैर मुल्की फंडिंग से कुछ मुर्दा ज़मीरों ने इस प्रोजेक्ट को इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया कि इस पर काम को रोकना पड़ गया। प्रोग्राम के मुताबिक दरियाए काबुल, सवा और सवात से आने वाले सराबी रेलों को कालाबाग डैम और रसूल लिंक के जरिए 3 मशरकी दरियाओं चिनाब, सतलुज और रावी में पहुंचाना था। यानी यूं कह लें कि कालाबाग डैम का पानी कालाबाग रसूल लिंक और दूसरी राब्ता नहरों के जरिए चिनाब, रावी और सतलुज के मुल्हिका इलाकों को सैराब करने के लिए पहुंचाया जाना था। इस वक्त
ان 3 दरियाओं का इन्हिसार मंगला डैम पर है। अगर हम मंगला से पानी नहीं छोड़ते तो ज़राअत ख़त्म हो जाती है, और अगर सप्लाई जारी रहती है तो डैम खुश्क हो जाता है। यकीनन आप काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हालात और वाटर स्टोरेज से वाकिफ़ हो चुके होंगे। अब आप ही बताएं कि कालाबाग डैम का वजूद हमारी ज़राअत और मुल्क की लाइफ लाइन है कि नहीं? क्या इसको मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान से खुली दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? मेरे ख्याल में ये तामीर किसी सियासी जमात की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मुफादात पाले जाते हैं। रियासत की फिक्र किसको है? हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि जल्द अज जल्द कालाबाग डैम तामीर किया जाए। मेरी मुक्तदर हलकों से गुजारिश है कि बराए करम कालाबाग डैम प्रोजेक्ट की हिफाजत और तामीर में मदद की गारंटी भी लें। अगर हुकूमत इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो भी गए तो यकीन कर लें कि पहले ही दिन से मुल्की ज़र मुबादला में अरबों डॉलर सालाना का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जो बिजली के कारखानों को चलाने के लिए तेल की इंपोर्ट में खर्च हो जाता है, इस डैम से कौम को सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी, और इसमें जमा शुदा पानी को नई नहरों के जरिए मुल्क के बंजर इलाकों तक पहुंचाकर उन्हें काबिल काश्त बनाया जा सकेगा, जिससे मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ज़्यादातर हिस्सा अपनी ज़मीन से ही पूरा किया जा सकेगा। और उसके साथ हर साल आने वाले सैलाबों से मुकम्मल मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस डैम के बन जाने से मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हो जाएगा। राब्ता नहरों के जरिए इजाफी पानी को रावी, चनाब, सतलुज तक पहुंचाया जाए और इन दरियाओं में नई झीलें बनाकर ज़मीनी पानी के लेवल को बुलंद किया जाए और आने वाली नस्लों को एक महफूज, मुस्तहकम और सरसब्ज पाकिस्तान दिया जाए। अगर आप ये कर गए तो यकीन कर लें कि आप सदियों तक जिंदा रहेंगे। आने वाली नस्लें आपको कौमी हीरो और निजात दहिंदा के रूप में जानेंगे। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये कालाबाग डैम बन गया तो पूरा पाकिस्तान नहीं डूबेगा। कोई भी इस डैम को बना लेता है तो सदियों तक आप लोग जिंदा रहेंगे, पूरा पाकिस्तान डूबने से बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि गोरा जाते जाते सिर्फ यही काम कर लेता, आप यकीन करें पाकिस्तान तरक्कियों की मनाजिल इस टाइम तय कर रहा होता। तो अगर आप में दम है, आप इस डैम को बना लें। आज के बाद एक ही नारा लगाएं, कालाबाग डैम हमारी लाइफ लाइन है।